Hello students, myself Jinalisha welcomes you on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will begin with the next part of the chapter Molecular Basis of Inheritance. Students, in the last lecture we have seen that the method of the DNA replication is said to be a semi-conservative method, and for that Messelson and Stahl they have given the experiment which proves that there is a semi-conservative mode of replication. In today's lecture, we will be studying how the process of replication occurs. That is, we will be studying in detail the process of DNA replication. So, first of all, what is DNA replication? So, unique process of making an identical copy of double-stranded DNA using the existing DNA as a template for the synthesis of the new strands, it is called as the DNA replication. So, in simple terms, we can say that to make the identical copy of the DNA, it is called as the DNA replication. जो ओरिजिनल DNA ऑलरेडी है वो DNA की नई कॉपीज को फॉर्म करना, that is called as the DNA replication. Now, when this process will take place? So, replication in eukaryotes occur in the nucleus during the S phase of the cell division when the chromosomes are in their extended forms and are not readily visible. So, very important, when replication occurs. So, it occurs during the S phase of the cell division. S phase is the synthesis phase. We know that there is interphase which is divided into G1, S and G2 phase. So, during the S phase, that is synthesis phase, किसका synthesis हो रहा है? DNA का. So, it is during the S phase of the cell division when the replication will take place. And where replication occurs, of course DNA nucleus में है, तो replication also occurs in the nucleus. Now, during the S phase, the chromosomes are in their extended forms and they are not readily visible. They cannot be visible, okay? Whereas, when we talk about the replication in prokaryotes, it occurs in the cytoplasm and it is almost a continuous process. Continuously होता ही रहता है. यूकैरियोट्स में कब होता है? एस फेज में होता है. बट इन प्रोकैरियोट्स it occurs almost continuously, or you can say it is a continuous process, and it occurs in the cytoplasm. Now, how replication occurs? It was suggested by Watson and Crick. So, what did they say? Watson and Crick, they suggested that the two strands of the DNA molecule uncoil and separate, and each strand serves as a template for the synthesis of the new complementary strand alongside it. So, Watson and Crick ने क्या बोला कि at the time of the replication, we know that the two strands of the DNA, they are joined and they are in a coiled manner. So, first of all, uncoiling of the DNA will take place, due to which both the strands of the DNA get separated. Now students, each strand act as a template, यानी दोनों स्ट्रैंड पे नया DNA का फॉर्मेशन होगा, एंड जो नई चेन का फॉर्मेशन होता है, that new chain formed will be complementary to the existing chain. So each strand, it serves as a template for the synthesis of a new complementary strand alongside it. The template and its complement then form a new DNA double strand identical to the original DNA molecule. Okay, पहले एक सिंगल कीप इन माइंड के से फॉर एग्जांपल ये सिंगल DNA मॉलिक्यूल था. ओके, अभी ये DNA मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे. सो ये दोनों स्ट्रैंड्स कैसी हो गई? सेपरेट. अभी ये सेपरेट स्ट्रैंड पे नए DNA चेन का फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज वन पेरेंटल DNA, दिस इज द अनदर पेरेंटल स्ट्रैंड, राइट. अभी ये स्ट्रैंड पे एक नया DNA स्ट्रैंड बनेगा. सेम वे ये दूसरा जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उस पर भी नया डॉटर DNA बनेगा.
कैसे बनेगा? सो दिस डॉटर डीएनए इट विल बी कॉम्प्लीमेंटरी टू द पेरेंटल डीएनए. So now what happens? One DNA got separated, and ये नए that separated DNA it have formed a new DNA, and this both DNA which are formed they are identical to the parental, or you can say original DNA molecule. Now what should be the sequence of the bases on the new strand? It can be easily predicted. Why? Because the bases would be complementary to those present in the old strand, or you can say parent strand. So the sequence of the bases which should be present in the new strand can be easily predicted because this would be complementary to the bases present in the old strand. ओके नए चेन में डीएनए में बेसिस का सीक्वेंस क्या होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा? वी नो that both the strands of the DNA they are complementary to each other. So as the bases are complementary to each other, we can know the bases which could be present in the new strands. So suppose if you are given the base sequence of one strand of the DNA, you can easily predict the base sequence of the other pair because both the chains are complementary to each other. So say for example this is a parental chain. Say for example इसमें ये कोई particular sequence है. Now ये chain पे suppose नया DNA बन रहा है तो can you predict the sequences? Easily you can predict. How? Suppose in the parent chain A is there. So what would be present in the daughter chain? T. Same way यहाँ पे भी T होगा, T की जगह पर यहाँ पे A होगा, यहाँ पे O होगा, and instead of instead of C it would be G. So by the base pairing rule we can predict the bases which could be present in the new strand. So A will pair with T, T with A, C with G, and G with C. So two daughter DNA molecules are formed from the parent DNA molecule. From one DNA molecule total two new DNA can be formed. क्योंकि एक parental DNA के पास कितने strands है? 2 strands है. And दोनों strands पे किसका formation हो रहा है? नए DNA chain का. So from one parental DNA molecule total 2 daughter DNA can be formed, and this daughter DNA which are formed they are identical to the parent molecule. Now students, each daughter molecule will consist of one parent strand, right, and other new strand. Say for example ये original DNA molecule है. अभी ये दोनों चेन का क्या होगा? सेपरेशन होगा, एंड ये सेपरेशन होने के बाद ये चेन पे एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है. सिमिलरली ये पेरेंट स्ट्रैंड पे एक दूसरा डीएनए बनता है. ओके, सो दिस बोथ दिस स्ट्रैंड they have one original parental chain and one chain is a newly synthesized strand. So as only one parent chain is conserved, what type of what type of replication it is said to be? Semi-conservative. Why it is called as a semi-conservative replication? क्योंकि जो भी daughter DNA बनते हैं उसमें एक ही parental DNA conserve होता है, and that is why it is called as the semi-conservative mode of replication. So students, since only one parent strand is conserved in each daughter molecule, this mode of replication is said to be semi-conservative. Why it is called as a semi-conservative mode of replication? Because in the daughter DNA formed, only one parental chain is conserved. जो नई chain बनी है वो तो newly synthesized chain है. There is only one parental chain, and that is why it is called as a semi-conservative mode of DNA replication. Now students, this mode of replication is a complex multi-step process requiring a services of many enzymes,
प्रोटीन फैक्टर्स एंड मेटल आयंस। नाउ ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऐसा भी नहीं है कि एक ही स्टेप में रेप्लिकेशन हो जाएगा, नो, it is a multi-step process and this process requires enzymes, it requires certain proteins as well as it requires the metal ions. Now कैसे replication का process होता है? So first of all the parent DNA double helix uncoils and splits into the single DNA strands by the breakdown of the hydrogen bond. So we know that DNA is double stranded. So first step जो होता है that is uncoiling of the DNA. That is double stranded DNA. ये जो double stranded DNA है it will split into the single stranded DNA by the breakdown of these hydrogen bonds. Now the DNA molecule is intricately, that is complexly or you can say complicatedly or twisted, coiled in its chromosome and its unwinding is not an easy job. ये DNA molecule का जो coiling है it is very complicated. The DNA when it is coiled, when the double stranded DNA it occurs in the coiled form, it is highly complicated and to unwind this DNA is very difficult job. So as it is a difficult job, किसी की help चाहिएगी उसको unwind करने के लिए, right? As unwinding is not an easy job, there is requirement of something. So वो क्या होता है? So enzymes called helicases or unwindases, they help in unwinding the helix using the ATP as a source of energy. They use the ATP as the source of the energy. Okay. DNA को अनकॉइल करना इजी काम नहीं है, सो यहाँ पे एंजाइम्स का यूज़ होता है. सो जो एंजाइम यूज़ होती है दे आर कॉल्ड एज द हेलिकेसेस और ऑल्सो दे आर कॉल्ड एज द अनवाइंडेसेस. So this enzyme they break the hydrogen bond and will be helpful in converting a double stranded DNA into the single stranded form, and for this they use the ATP as the source of the energy. Okay, अभी नॉर्मली डीएनए कौन से फॉर्म में होता है? डबल स्ट्रैंडेड. ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कैसा होता है? स्टेबल होता है. जब अनवाइंडेसेस काम करता है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्प्लिट्स इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म. सो अभी ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म को फॉर्म में डीएनए को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है. नॉर्मली डीएनए इज स्टेबलाइज्ड इन विच फॉर्म? डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म. But as we are uncoiling, as uncoiling process occurs and as DNA splits into the single strand, to stabilize the DNA को stable रखना ज़रूरी है single stranded form में. So उसके लिए there is a non-enzymic protein. So a non-enzymic single stranded DNA binding protein, very important, SSB, single stranded DNA binding protein, which is also called as helix stabilizing protein. It stabilizes the chain in the single stranded form to reduce the energy needed to unwind the DNA helix. Okay, हेलिकेसेस क्या करता है? डीएनए को अनकॉइल करता है एंड जो डबल स्ट्रैंड्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है? सिंगल स्ट्रैंड्स में. कैसे? तो दो डीएनए चेन्स के बीच में के हाइड्रोजन बॉन्ड को वो तोड़ देता है, राइट. नाउ डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सिंगल स्ट्रैंड. नाउ इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू स्टेबलाइज द डीएनए इन द सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म so that it reduces the energy further required to uncoil the DNA. So यहाँ पे कौन काम करता है? There is a protein and that protein is non-enzymic. Non-enzymic यानी that protein is not working as a enzyme. So ये जो protein है जिसका नाम है single stranded DNA binding protein, this protein which is also called as helix stabilizing protein,
ये डीएनए चेन को स्टेबिलाइज करता है उसके सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में. नाउ this unwinding creates a coiling tension ahead of a moving replication fork. अभी इमेजिन के से फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा डीएनए है, राइट. डीएनए इज अकरिंग इन दिस मैनर. अभी आप एक रोप लेते हो, रोप को कॉइल्ड करते हो. जैसे ही हम कॉइल को सेपरेट करते जाएंगे तो जैसे जैसे सेपरेशन होता जाएगा तो क्या होता जाएगा कि ऊपर की तरफ जैसे ही वो रोप छूटने लगती है, अनकॉइल करने लगते हैं, तो ऊपर की तरफ क्या डेवलप होता है, टेंशन जनरेट होता है, राइट. सो ये टेंशन को रिमूव करना, कॉइलिंग टेंशन, जैसे जैसे वो सेपरेशन होता रहता है वैसे वैसे क्या डेवलप होता है, कॉइलिंग टेंशन जनरेट होता है. एंड ये कॉइलिंग टेंशन को रिड्यूस करने के लिए there are other enzymes called as the Topoisomerases. What are those enzymes called as? They are called as Topoisomerases. आप रोप को अनकॉइल करते जाओगे तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, टेंशन जनरेट होगा. टेंशन जनरेट होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सेपरेशन होगा नहीं, राइट. फिर भी अपने को नेसेसरी है कि सेपरेशन तो करना है. सो यहाँ पे जो काम करता है वो कौन है, Topoisomerases. What topoisomerases do? They cut and rejoin one of the DNA to facilitate uncoiling. Say for example, ये मैंने DNA है, ओके. यहाँ से वो अनकॉइल हो रहा है, ओके. सो ये ऐसा एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा. फर्दर यहाँ एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अनकॉइलिंग नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन जनरेट हुआ है, इसकी वजह से फर्दर अनकॉइलिंग हो नहीं रहा है. सो हियर प्लेस द रोल ऑफ द एंजाइम टोपोइसोमरेज. ये क्या करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा कट कर देगा, यहाँ पे ये कट कर देगा जहाँ पे ये टेंशन आया है. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो टेंशन आया है, ओके. यहाँ पे टेंशन आया है. सो यहाँ पे वो क्या कर देगा, कट कर देगा. तो फिर से इजीली ये अनकॉइलिंग का कट करके इजीली फिर से वो डीएनए को ज्वाइन करके अनकॉइलिंग के प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करता है. सो दिस आर द टू एंजाइम्स विच प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अनकॉइलिंग ऑफ द डीएनए. वन इज हेलिकेसेस जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में करता है, अनकॉइलिंग में हेल्पफुल करता है. एंड अनकॉइलिंग की वजह से जो जैसे जैसे अनकॉइलिंग प्रोग्रेस होता जाता है, जिसकी वजह से कॉइलिंग टेंशन जनरेट होता है, वो कॉइलिंग टेंशन को रिमूव करने के लिए देयर इज अनदर एंजाइम कॉल्ड एज द टोपोइसोमरेसेस. एंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ है तो उसको स्टेबिलाइज करने के लिए देयर इज अ नॉन एंजाइमिक प्रोटीन कॉल्ड एज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में मेंटेन करता है. नाउ इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम कॉल्ड एज द गायरेसेस, they work as the helicases and topoisomerases. So eukaryote में helicases and topoisomerases है, whereas in the prokaryotes the work of the helicases and topoisomerases is done by the gyrases. Now students, the entire DNA chain does not split in one go. DNA बहुत बड़ी chain है. सो एक जगह पे रेप्लिकेशन का अनकॉइलिंग स्टार्ट हुआ, प्रोसेस में अनकॉइलिंग हुआ, तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्टार्ट में या एक ही पॉइंट से पूरा डीएनए चेन क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा. नो, द डीएनए स्ट्रैंड्स दे स्टार्ट सेपरेटिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट and that specific point is called as the origin of replication, from where the separation slowly progresses to the other end. ऐसा नहीं है कि डीएनए कहीं से भी सेपरेशन स्टार्ट होगा. नो, दे स्टार्ट सेपरेटिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, एंड जहाँ से वो सेपरेशन स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. जैसे ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गया, यानी हेलिकेसेस विल फाइंड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड वहाँ से फिर सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा.
Now, when we talk about eukaryotic organisms, so in eukaryotic DNA, the process begins at many origins of replication. So eukaryotes में ऐसा नहीं है कि एक DNA में एक ही origin of replication होगा. No, there are many. यानी एक ही साथ बहुत सारी places में there will be the process of replication continuing. ओके अनजिपिंग और अनकॉइलिंग की वजह से द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म्स अ वाई शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन फॉर्क. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? अनकॉइलिंग की वजह से कैसा एक स्ट्रक्चर बनता है? वाई शेप स्ट्रक्चर. एंड दिस वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन फॉर्क. न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स ग्रो from and towards the fork. See students, this is a diagram of a replication fork. Say for example, ये direction of fork है, यहाँ पे origin of replication था, तो देखो separation हो गया. This blue one is a parental DNA molecule. This is also a parental DNA molecule. ये parental DNA पे नया ये जो green वाले है this and this, these are the new DNA form. कैसे वो मैं बाद में बताती हूँ. लेकिन अनकॉइलिंग की वजह से क्या हुआ? एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना. सी दिस इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म एंड दिस वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क. सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ रेप्लिकेशन फॉर्क अगेन. ऐसे ये प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोसेस है. सो दिस इज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन. नाउ व्हाट हैपन्स स्टूडेंट्स? मैंने जैसे बोला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में विद इन अ सिंगल डीएनए देर आर मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोकैरियोटिक डीएनए दे कंटेन अ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन which is called as ORI and it progresses in both the directions. Now DNA replication होता कैसे? पहला स्टेप हमने ये देख लिया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में with the help of the helicases as well as the topoisomerases. Whereas in prokaryotes there is an enzyme called as the chierases. Okay, अभी ये दोनों चेन सेपरेट हो गई. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? So a short chain of RNA, listen very carefully, I am telling RNA. It is formed on the DNA at the 5' end. Okay, so first after uncoiling of DNA, next step क्या होता है कि पहले at the 5' end of the template क्या बनता है? There is the formation of the RNA. अभी छोटी RNA की चेन बनेगी and that short chain of the RNA is called as the primer. किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमर. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये RNA क्यों बना? सो द रीज़न फॉर दिस इज, सी अपने को तो DNA बनाना है. DNA बनाने के लिए DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होगी जो क्या करेगी? नए नए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को लेकर आएगी और चेन का सिंथेसिस करेगी. लेकिन ये जो DNA पॉलीमरेज है ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकती है. इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. हाँ, वो चेन को ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकती है. सो उसके लिए पहले एक छोटा RNA बनना ज़रूरी है जिसको हम बोलेंगे प्राइमर. प्राइमर जैसे ही बन जाएगा वैसे ही बाद में क्या करेगा? पॉलीमरेज अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द parent strain, it will bring the new nucleotides for the synthesis of the new chain. So there is a formation of short chain of the RNA on the DNA template at the 5' end, and this short chained RNA form, it is called as a primer. So basically ये डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ. तो देखो ये अपना जो ब्लू कलर वाला है दिस इज अ पेरेंटल स्ट्रैंड. ये पेरेंटल स्ट्रैंड का कौन सा एंड है? 3' एंड. ओके, सो ऑफ कोर्स अभी नया जो DNA बनेगा उसका कौन सा एंड होगा? 5' एंड, क्योंकि बोथ एंड्स आर विच टाइप ऑफ एंड्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंड. सो ये नए चेन का ये कौन सा एंड हो जाएगा? 5'.
सो यहाँ पे ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर बना वो क्या है? दैट इज द आरएनए प्राइमर। ओके, अभी प्राइमर का सीक्वेंस क्या होगा वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगेन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ए टी टी सी, सपोज ये इनिशियली ये स्ट्रक्चर है, तो आरएनए प्राइमर कैसा होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, एक ही जगह पर क्या होगा इन द आरएनए? विल इट बी टी? नो स्टूडेंट्स, A will be replaced by U because we are talking about RNA formation. So RNA में थाइमिन की जगह पर क्या होता है? यूरेसिल। सो A जहाँ पे होगा यहाँ पे, तो RNA में क्या होगा? U होगा। T की जगह पे A होगा, T की जगह पे फिर से होगा, एंड C की जगह पर क्या होगा? G होगा। So to start the process of replication, there is a need to form a short chain of RNA, and that short chain of RNA formed is called as what? It is called as the RNA primer. Okay, why primer is formed? Because DNA polymerase cannot initiate the process of replication. वो चेन के ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकता है। ओके, इतना चेन बन गया, बाद में डीएनए पॉलीमरेज नए नए न्यूक्लियोटाइड्स लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पे उसको स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज द रीज़न वाई प्राइमर इज फॉर्म्ड। ओके, ये प्राइमर फॉर्मेशन के लिए there is an enzyme called as the primase. So primase catalyzes the polymerization of the RNA building blocks into the primer. So ये primase enzyme क्या लेकर आते हैं? जो RNA के न्यूक्लियोटाइड्स है AUCG. So they will be helpful in building up the primer. Why primer is formed? The primer is formed because the enzyme DNA polymerase cannot initiate the synthesis of the new strand, although it can catalyze the growth of the DNA chain. So जैसे मैंने बताया कि ये प्राइमर बना क्यों? आरएनए की छोटी चेन बनी क्यों? द रीज़न इज डीएनए पॉलीमरेज खुद प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। द डीएनए पॉलीमरेज इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. Yes, it can continue the growth of the chain, but it cannot initiate the process of replication. इसके लिए initially a short RNA molecule is formed, which is called as primer, and primer is formed with the help of the enzyme primase. Okay, the primer is formed at free end of one DNA strand and at the fork end of the other strand. Okay, अभी ये DNA strand है. Okay, so say for example प्राइमर कहाँ पे बनेगा? So these ends of the DNA they are called as the free end, and ये वाला जो end है ये कौन सा end है? Fork end. This is the fork end and this is which end? Free end. So primers कहाँ पे बनते हैं? So it is formed at the free end of one DNA chain. So ये वाली जो chain है, ओके, जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, उसमें कहाँ पे बना? फ्री एंड पे. लेकिन जो चेन की पोलैरिटी 5' to 3 है, सो यहाँ पे ये जो प्राइमर्स बने वो कहाँ पे बने? एट द फॉर्क एंड. सो वेयर आर प्राइमर्स फॉर्म्ड? द प्राइमर्स आर फॉर्म्ड एट द फ्री एंड ऑफ वन डीएनए स्ट्रैंड एंड एट द फॉर्क एंड ऑफ द अदर डीएनए स्ट्रैंड. ओके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए फॉर्मेशन की. तो यहाँ पे तो हमने प्राइमर किसका बनाया? आरएनए का बनाया. सो ये प्राइमर्स का बाद में क्या होता है? सो द प्राइमर्स आर लेटर रिमूव्ड एंड गैप्स सो लेफ्ट आर फिल्ड विथ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू मेक द डीएनए स्ट्रैंड्स कंटिन्यूअस. सो जो भी प्राइमर्स बने, वंस द पूरा डीएनए चेन बन जाता है तो बाद में ये प्राइमर क्या होते हैं? दे आर रिमूव्ड. वंस दे आर रिमूव्ड वहाँ पे गैप आ जाएगी, तो गैप को कौन फिर से भर देगा? सो अगेन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. प्राइमर में क्या था? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे. जब प्राइमर्स रिमूव हो जाएंगे, से फॉर एग्जांपल ये डीएनए चेन है जिसमें ए टी 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 सी है, ओके,
ओके ये नया चेन है जहाँ पे डीएनए का मॉलिक्यूल बनने वाला है. सो इनिशियली तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, आरएनए प्राइमर. ये प्राइमर का कंस्टिट्यूशन क्या होगा, UAAG. एंड से फॉर एग्जांपल फर्दर तो ये जो भी डीएनए है ये पूरा डीएनए वाला है. ओके ये आरएनए प्राइमर है जो डीएनए चेन पे बना है. अभी ये आरएनए प्राइमर्स को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. जब वो रिमूव होगा तो यहाँ पे एक गैप रह जाएगी. ये गैप को फिर से कौन भर देगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. सो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा. टी की जगह पर ए होगा एंड ये तो सेम रहेगा. सो gaps are later filled by the deoxyribonucleotides and the chain becomes continuous. Now, with the help of the energy, deoxyribonucleoside monophosphate are joined into each single chain DNA become linked together forming a new DNA chain. So बाजू बाजू के न्यूक्लियोटाइड जैसे जैसे आएंगे उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा एंड अ न्यू डीएनए चेन विल बी फॉर्म्ड. नाउ कौन से न्यूक्लियोटाइड आएंगे और कैसे आएंगे, सो ये करने के लिए देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज द डीएनए पॉलीमरेज. So the above process is catalyzed by enzyme DNA polymerase alpha and delta and is aided by the metal ions Mg2+ or Mn2+. So this produces two double chains which are identical to each other as well as to the original mother chain. So एक DNA में से दो DNA बनेंगे. अभी जो दो DNA चेन है वो दोनों एक दूसरे से तो आइडेंटिकल है ही है, but they are also identical to the parental DNA molecule. It should be noted that each daughter double chain inherits from mother one single chain which serve as a code specific template in the formation of a new single chain. So जो daughter DNA बने उसमें से एक ही chain है जो किसकी तरह वर्क करती है, कोड स्पेसिफिक टेम्पलेट चेन. And with the help of that chain only a new DNA chain is synthesized. In this manner the genetic code is faithfully transmitted from one DNA generation to the next DNA generation. Now very important thing students, the DNA polymerase can polymerize the deoxyribonucleotides in 5' to 3' direction only. Very important. DNA polymerase कौन से डायरेक्शन में काम कर सकता है, 5' to 3'. यानी सपोज ये एक चेन है 3' to 5'. ओके सो अभी जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो कहाँ पे से कहाँ काम करेगा, क्योंकि नई चेन बनानी है. सो ये 5' to 3' में ही काम करेगा. इट कैन नॉट वर्क इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. It will work in 5' to 3' direction. That is from the 5' end to the carbon 3' end of the sugar molecules in the DNA strands. Now, because the two strands are antiparallel, the new strand must be formed on the parent strand in the opposite direction. Okay, DNA कैसे दोनों जो parental DNA होते हैं वो कैसे एंटी पैरेलल होते हैं, यानी एक का डायरेक्शन 3' to 5' है तो दूसरे की पोलैरिटी क्या है, 5' to 3'. सो अगर पेरेंटल चेन एंटी पैरेलल है तो ऑफ कोर्स वो पेरेंटल चेन में जब नया डीएनए बनेगा वो भी कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन. से फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल डीएनए है, इसकी पोलैरिटी 3' to 5' है एंड इसकी पोलैरिटी 5' to 3' है. ओके सो आई टोल्ड यू कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कौन से डायरेक्शन में काम करती है, इट वर्क्स इन 5' to 3' डायरेक्शन. सो ये चेन पे इट विल बी फॉर्म्ड इन दिस मैनर एंड यहाँ पे वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, इन दिस मैनर. सो एज द चेन्स ऑफ द डीएनए आर एंटी पैरेलल, जो न्यू चेन्स बनने वाले हैं वो भी कौन से डायरेक्शन में बनेंगे, अपोजिट डायरेक्शन. ओके अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, one new strand is formed in a continuous stretch in 5' to 3' direction. It is called as a leading strand. Okay, अभी जो पेरेंटल डीएनए स्प्लिट हुए हैं दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, उसमें नए डीएनए मॉलिक्यूल बनने वाले हैं.
सो एक पेरेंटल डीएनए पे जो नया डीएनए बनता है, it is formed in a continuous manner and that strand is called as a leading strand. Whereas on the other parent strand, short DNA fragments are formed in 5' to 3' direction starting from the primers. ओके दूसरे चेन पे क्या होता है कि डीएनए कंटिन्यूसली नहीं बनता है, छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स बनते हैं एंड ईच सेगमेंट विल हैव देयर ओन प्राइमर्स. सो ये जो स्ट्रैंड है कि जहाँ पे शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं, दोज डीएनए सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ओके सो क्या होता है, एक चेन पे डीएनए कंटिन्यूस वे में बनता है और एक चेन में डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं जिसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. सो जो स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड्स. ओके मैंने बोला ईच शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए विल हैव इट्स ओन प्राइमर. सो बाद में प्राइमर क्या हो गए, रिमूव होते जाएंगे. कैसे वो देखते हैं. सो देयर इज अ सेपरेट प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. Okay, these Okazaki fragments are later joined together forming a continuous lagging strand. पहले जब lagging strand बनता है वो कैसे होता है, discontinuous होता है. Later what will happen, all the fragments they are joined. उसको join कौन करेगा, there is a enzyme called as a DNA ligase. ये क्या करेगा, सब fragments को join कर देगा. And what is that called as, it is पहले स्ट्रैंड कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है. ये ऐसे ऐसे डीएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनेंगे. ये फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. लेटर ये सब फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, जॉइन हो जाएंगे. सब बाद में ये जो चेन है उसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड. लेकिन ये लैगिंग स्ट्रैंड के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है दे विल बी जॉइन लेटर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लैगिंग स्ट्रैंड. The Okazaki fragments are linked up by the enzyme DNA ligase after replacing the primers with the deoxyribonucleotides. पहले क्या होगा, हर स्ट्रैंड के लिए प्राइमर बनाए तो पहले तो प्राइमर रिमूव होगा. प्राइमर रिमूव होने के बाद डीएनए लाइगेज जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको क्या कर देगी, जॉइन कर देगी. DNA replication is said to be semi-discontinuous because the leading strand is synthesized continuously and lagging strand is formed discontinuously in the short pieces that later join. So yes, DNA replication को semi discontinuous भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि एक चेन लीडिंग स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होती है एंड दूसरी स्ट्रैंड कैसी होती है, लैगिंग स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूसली बनती है, जो बाद में उसको प्राइमर्स रिमूव करने के बाद वो स्ट्रैंड्स को जॉइन करते हैं. सो यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ आपको. तो देखो ये फ्री एंड है. सो जो फ्री एंड पे प्राइमर्स हो गए वो चेन को कंटिन्यूसली बना रहे हैं, राइट. दिस इज़ द फ्री एंड ऑफ द डीएनए. सो यहाँ पे जब प्राइमर काम करता है एंड देन ये डीएनए पॉलीमरेज, तो ये देखो ये लीडिंग है, कंटिन्यूसली बना है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ लीडिंग स्ट्रैंड. बट ये जो फॉर्क एंड होती है, दिस एंड इज़ फॉर्क एंड. एंड जब फॉर्क एंड पे डीएनए मॉलिक्यूल बनता है सो वहाँ पे ये देखो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने हैं एंड ईच फ्रेगमेंट इज़ हैविंग इट्स ओन प्राइमर. देखो सो यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स में बना है. दिस फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड दिस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड. बाद में क्या होते हैं, ये जो प्राइमर्स है उसको निकल जाते हैं एंड देयर प्लेस इज टेकन, द प्राइमर्स आर रिमूव्ड एंड देयर प्लेस इज टेकन बाय द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. एंड लेटर देखो ये एक प्राइमर था, ये एक प्राइमर था, ये जॉइन हो चुका है. सो यहाँ पे जो जॉइनिंग का काम करता है दैट इज कॉल्ड एज द डीएनए लाइगेस. This is the point of the joining. So this is called as the replication mechanism. Here I will show you again. See students, ये coiling का process है. So first step कौन सा है, हेलिकेस.
हेलिकेस क्या करता है, दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है। टेंशन जनरेट करने के लिए कौन काम करता है, टोपोआइसोमरेज। ओके, अभी ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्ट हो गया, तो देयर इज द नीड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में क्या करेगा, काम करेगा। ओके, अभी कैसे काम करता है, सो जहाँ पे फ्री एंड है, दैट इज 3' एंड इज फ्री, सो वहाँ पे क्या होता है, आरएनए प्राइमर बनता है। ये प्राइमर कंटिन्यूसली फिर डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से पहले छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही छोटा प्राइमर बन जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, ये चेन को ग्रोथ करती रहेगी। एंड फॉर्क एंड पे क्या होता है, प्राइमर बनता है, फिर डीएनए बनता है, फिर गैप आती है, फिर से प्राइमर गैप। सो ये जो शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। सो ओके, यहाँ पे कौन से एंजाइम वर्क करेगी, प्राइमेज। ओके, एंड देन दिस इज विच एंजाइम, डेल्टा पॉलीमरेज। विच एंजाइम इट इज, डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज। एंड इन सम केसेस there is the use of the alpha polymerase too. So again same diagram, template strand, replication fork, this is DNA polymerase, DNA ligase जो primers को remove करने के बाद join करता है, and this green color is the polymerase enzyme. So these are the two strands, leading strands and lagging strands. हेलिकेस एंजाइम, प्राइमेस एंजाइम, प्राइमर बना है, फ्री एंड पे कंटिन्यूस बनेगा, फॉर्क एंड में स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। सो दिस इज अ कंप्लीट समरी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। पहले क्या होता है, हेलिकेसेस अनवाइंड द डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल, then single stranded binding protein stabilizes the unwound parental DNA. The leading strand is synthesized continuously in 5' to 3' direction by the DNA polymerase. तो देखो जहाँ पे free end है ये continuous process हुआ, whereas lagging strand is synthesized what, in a discontinuous manner. Now there is a primer formed for each and every primer. Okay, so primase synthesizes a short primer which is extended by DNA polymerase to form an Okazaki fragments. Okay, then later these primers are removed and they are replaced by DNA. बाद में ये लाइगेज है जो ये सब प्राइमर्स, ये सब छोटे फ्रेगमेंट्स को क्या कर देती है, जॉइन कर देती है। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने पढ़ा, बेसिकली आई एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. नाउ व्हाट थिंग इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वी विल बी डीलिंग विद दैट. सो मशीनरी एंड एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन. In living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalyst or enzyme. हमने ये पूरा देख लिया है. The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase. So main enzyme कौन सी है, जो नए DNA राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा. So it is DNA dependent DNA polymerase. क्यों DNA dependent DNA polymerase बोला है, क्योंकि ये एंजाइम टेम्पलेट डीएनए को यूज़ करती है और बाद में पॉलीमराइजेशन करती है, अपने आप वो काम नहीं कर रही है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड. सो द मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. Since it uses the DNA template to catalyze the polymerization of the deoxynucleotides. Are you getting my point, students? Why this enzyme is called DNA dependent DNA polymerase? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंजाइम टेम्पलेट डीएनए को यूज़ करती है. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ टेम्पलेट, दिस बोथ आर डीएनए टेम्पलेट्स. ये टेम्पलेट के हिसाब से ये एंजाइम काम कर रही है. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. Now these enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze a polymerization of a large number of nucleotides in very short period of time. E. coli has only 4.6 into 10 raised to 6 base pair. Compare it with the humans whose diploid content is 6.6 into 10 raised to 9 base pair.
सी ई कोलाई में तो कितनी बेस पेयर्स है 4.6 इंटू 10⁻⁶, जबकि ह्यूमन बींग्स में कितनी है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। सो ई कोलाई में इतनी बेस पेयर है तो ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है 18 मिनट्स में, विच मीन्स द एवरेज रेट ऑफ पोलीमराइजेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर्स बनते हो गए। So not only do these polymerases have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with the high degree of accuracy. So ये एंजाइम को सिर्फ फास्ट होना ज़रूरी नहीं है, बट उनको जो पॉलीमराइजेशन करना है उसको एक्यूरेटली करना है। से फॉर एग्जांपल डीएनए टेम्पलेट पे ए है एंड भूल से एक यहाँ पे सी आ गया, तो ये मेथड क्या हो जाएगी, जो प्रोटीन बाद में बनेगा वो रॉन्ग बनेगा। सो ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिएगी, एक्यूरेट। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई रेप्लिकेशन के टाइम पे देन इट वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशंस। नाउ सो हमने ये देखा कि डीएनए पॉलीमरेज का काम है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एक्यूरेट भी है एंड फास्ट भी है। नाउ ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है, एनर्जी एक्सपेंसिव, यानी इट यूटिलाइजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ये एनर्जी आती कहाँ से, तो एटीपी तो होगा ही स्टार्टिंग में, बट बेसिकली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दे सर्व एज अ ड्यूअल पर्पसेस। अपने को डीएनए में क्या चाहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट चाहिए, लेकिन इनिशियली क्या बनता है, ट्राइफॉस्फेट। जब ये ट्राइफॉस्फेट होता है तो क्या होता है, उसका जो लास्ट 2 फॉस्फेट है वो सेपरेट हो जाता है, पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्या होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इट स्प्लिट्स इनटू द 2 molecules of inorganic phosphate and deoxyribonucleoside monophosphate। अभी ये इनऑर्गेनिक बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाद में बनता है, वो 2 जो सेपरेट हुए फॉस्फेट उसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। ये पायरोफॉस्फेट के अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। सो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, सो एट दैट टाइम इट प्रोवाइड्स अस विद द एनर्जी। So we can say that deoxyribonucleoside triphosphate they serve as a dual purpose। एक तो they act as a substrate, substrate किसके लिए, नए DNA formation के लिए, okay, and they also provide the energy for the polymerization reaction। The 2 terminal phosphates in the deoxyribonucleoside triphosphate are high energy phosphates, same as in case of ATP। सी मैं क्या बोलने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये पेरेंट डीएनए है, इसके ऊपर नया डीएनए बनने वाला है। सो नए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। सो जो नए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं ना, तो वो कौन से फॉर्म में आते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आते हैं। डीएनए में वो कौन से फॉर्म में होते हैं, मोनोफॉस्फेट, बट इनिशियली जब उनका एडिशन होता है तो वो कौन से फॉर्म में होते हैं, ट्राइफॉस्फेट। तो वो टाइम पे क्या होता है, ये ट्राइफॉस्फेट के जो लास्ट के 2 फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या करते हैं, सेपरेट होकर उनमें हाई एनर्जी होती है। सो व्हेन दिस बॉन्ड ब्रेक दे रिलीजेस द एनर्जी एंड दिस एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर द रेप्लिकेशन। ओके, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy। so सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ही नहीं, बस उसके अलावा दूसरी और कई एंजाइम्स है जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। For long DNA molecules, since 2 strands of the DNA cannot be separated in the entire length due to the high energy requirement, the replication occur within a small opening of a helix referred to as replication fork। The DNA-dependent DNA polymerase catalyze the polymerization in one direction, that is 5'3' direction। मैंने बोला DNA polymerase कौन से direction में काम करेगा, एक ही direction में, 5'3'। So this creates additional complications at the replicating fork, क्योंकि एक एंड replicating fork का free end है और एक एंड fork end है। So यहाँ पे वो बहुत complications generate करता है। So consequently on one strand
कि जहाँ पे टेम्पलेट की पोलरिटी 3' to 5' है. सी से फॉर एग्जाम्पल ये 5' है, ये 3' है एंड ये 5' है, यहाँ पे 3' आ जाएगा. ओके, पॉलीमराइजेशन कौन से एंड में होने वाला है? 5' to 3'. ओके, सो जहाँ पे टेम्पलेट की पोलरिटी 3' to 5' है, सो यहाँ पे 3' है, तो यहाँ पे जब बनेगा ये 5' हो जाएगा नया चेन का एंड ये 3' हो जाएगा. सो यहाँ पे ये जो नया डीएनए बनेगा वो कंटिन्यूसली बनेगा. लेकिन जो टेम्पलेट की पोलरिटी 5' to 3' है, सी दिस इज द पोलरिटी ऑफ अ टेम्पलेट विथ 5' to 3'. सो यहाँ पे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे विच आर कॉल्ड एज द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स एंड यहाँ पे डिसकंटिन्यूसली ये सिंथेसाइज हो रहा है. सो जो टेम्पलेट की पोलरिटी 3' to 5' है, वहाँ पे रेप्लिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड जहाँ पे पोलरिटी 5' to 3' है, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस. अभी ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस तो है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स डिसकंटिन्यूस ही रहेंगे. ये discontinuous synthesized DNA fragments are later joined by the enzyme DNA ligase. The polymerases on their own cannot initiate the process of replication. मैंने बोला DNA polymerase खुद replication के process को start नहीं कर सकते हैं. सो उसके लिए इनिशियली क्या बनता है? RNA primers. हमने ये देखा. Also replication does not initiate randomly at any place in the DNA. ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. जहाँ पे ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलेगा वहाँ पे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगा. There is a definite region in E. coli DNA where replication originate and such regions are termed as the origin of replication. It is because of the requirement of origin of replication that the piece of the DNA, if needed to be propagated during the recombinant DNA procedures, requires a vector. Recombinant DNA technology में जहाँ पे हम डीएनए को प्रोपोगेट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, सो वहाँ पे वेक्टर का यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि वेक्टर्स दे प्रोवाइड्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो रेप्लिकेशन होने वाला नहीं है. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेशन टेक्नोलॉजी में वेक्टर का यूज़ इसीलिए होता है कि दे फाइंड हेल्प अस टू प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. The vectors they provide the origin of replication. Further, not every detail of replication is understood well. In eukaryotes, the replication takes place in the S phase of the cell cycle. The replication of a DNA and cell cycle should be highly coordinated. Okay, DNA replication हुआ but cell का division नहीं हुआ तो क्या होगा? So there will be polyploidy after replication. So failure of cell division after DNA replication results in polyploidy. Polyploidy आपने देखा कि जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स अफेक्टेड होते हैं. सो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ बट उसके बाद सेल का डिवीजन नहीं होगा, सो इट विल रिजल्ट इन द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी. You will learn the detailed nature of origin and processes occurring at the site in the higher classes. हमने somewhat डिटेल में स्टडी कर दिया. So students, this is a diagram given in your book. See students, ये replicating fork है. So जो strand टेम्पलेट में टेम्पलेट की पोलरिटी अगर 3' to 5' है, सी हियर टेम्पलेट्स पोलरिटी इज 3' to 5'. सो यहाँ पे जो नई चेन बनने वाली है 5' to 3' में वो कैसी है? कंटिन्यूस. बट जो टेम्पलेट की पोलरिटी 5' to 3' है, वहाँ पे जो नई चेन बनने वाली है वो इट अकर्स इन द डिसकंटिन्यूअस मैनर एंड दिस सिंथेस ये जो फ्रेगमेंट्स है उसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आज हमने डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टडी की है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि डीएनए में से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है. I end my lecture here. Thank you students.